Good morning, all. So, in today's SPOS lecture, okay, I already finished syllabus of first unit, which name is introduction. Okay, so these are the topics. So today's lecture agenda is first I revise the whole syllabus, and after that some question paper and MCQ I revise. Okay, so let's start. So first topic is the introduction to system programming. ये आपका क्या था, syllabus था. So what is mean by system is a collection of component. अभी मैं रिवाइज कर रही हूँ, तो किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप पूछ सकते हैं इन बिटवीन भी, ठीक है. So system is a collection of component. Okay, or what is meant by programming? So programming is a way to instruct a computer to perform a various tasks. So combined definition क्या है? System programming is an art of designing and implementing the system program. Okay, so there are two types of a software. First one is the application software, and second one is the system software. So what are the example of application software? So Word, Excel, these are the example of application software. And system software के example कौन-कौन से? Operating system, assembler, compiler, these are the example of system software. Okay, then एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर कहाँ वर्क करते हैं? यहाँ पर यूजर है जो कि रिक्वेस्ट यहाँ पर सेंड करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, और उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके बैकग्राउंड में किसको रिक्वेस्ट सेंड करना है? एनी सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? यहाँ पर हार्डवेयर को रिक्वेस्ट करके जो भी रिजल्ट है वो अगेन रिवाइज किसको सेंड करता है? यूजर को. ओके, सो दिस इज द फ्लो ऑफ application software and system software. So this is again definition. Application is a job or a task a user want to accomplish through a computer. Okay, so application software are program that help a user perform a specific job. So जो भी application software ये कैसे develop होते हैं? Develop using the programming language and tool. So application software interact with the system software. So what is meant by system software is a type of a computer program that is designed to run a computer hardware and application program. Control operation of computer hardware. It can control the operation of computer hardware. Okay, so this is all about the system software. ये difference हमने देखा था. difference क्या था? दोनों की definition. Then system software में और यहाँ पर developing language system software में low level होती है और यहाँ पर developing language हाई लेवल होते हैं. ओके, सो सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज फॉर ऑपरेटिंग कंप्यूटर हार्डवेयर, और ये क्या करता है? इट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज फॉर यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. एंड देन इसके एग्जांपल, इस वजह से आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर डिफरेंस लिख सकते हैं. ओके, so this is the high level language example. So C, C++, these are the high level language. low level language कौन-कौन से हैं? जैसे कि assembly language. This is the low level example of low level language, and this is the executable machine code. Okay, so these are the component of system programming. So text editor, loader and linker, assembler, compiler, macro, debugger, interpreter, device driver and operating system. तो एडिटर मतलब क्या? जिसमें हम क्या करते हैं? प्रोग्राम लिखते हैं. ओके, so with the help of text editor you can write a program. Okay, what is meant by loader? Loader is a program that takes the object code as an input and prepare them for execution. So it initiates the execution. So there are 4 function of a loader. First one is the allocation, linking, relocation, and last one is the loading. ओके, सो अलोकेशन मतलब मेमोरी को अलोकेट करना है. लिंकिंग मतलब जो भी फाइल है उसको लिंक करना है. अगर प्रोग्राम का लोकेशन चेंज हो रहा है तो यहाँ पर रीलोकेशन ये फंक्शन वर्क होगा. एंड एक्चुअल प्रोग्राम लोडिंग का काम कहाँ पर होता है? यहाँ पर लोडर करता है. ठीक है, देन नेक्स्ट जो पार्ट स्टार्ट है वो है असेंबलर. ये मैं रिविजन ले रही हूँ इस यूनिट की. पूरा सिलेबस कंप्लीट है फर्स्ट यूनिट का, आज रिविजन है. So assembler is nothing but the translated. It converts the assembly language program into the machine language.
So it is the symbolic representation of machine language. Okay, so assembly language में generally जो भी use होते हैं वो क्या होते हैं, mnemonic use होते हैं, ठीक है, जो कि मशीन की इंस्ट्रक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, उसको बोलते हैं निमोनिक. ओके, और असेंबलर क्या होता है, इसका डिफरेंट सिंटैक्स होता है. सीपीयू अगर चेंज है, मतलब जो भी हम बोलते हैं ना, उसको प्रोसेसर अगर चेंज है तो उसकी इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, चेंज होता है. जैसे कि x86 है, अगर ये प्रोसेस, तो इसकी एडिशन की इंस्ट्रक्शन देखो, ए एंड टी सिंटैक्स, इसकी सिंटैक्स देखो. सो दोनों में चेंज है, मीनिंग सेम रहता है लेकिन सिंटैक्स जो भी वो थोड़ा बहुत क्या होता है, चेंज होता है. देन कंपाइलर, कंपाइलर क्या है, इट कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द लो लेवल लैंग्वेज. ओके, तो अब ये हम क्या देख रहे हैं, ये फोर्थ पॉइंट है कंपाइलर. सो हम देख रहे हैं सिस्टम कंपोनेंट ऑफ सिस्टम प्रोग्रामिंग. सो फर्स्ट हमने असेंबलर देखा, लोडर देखा, देन कंपाइलर देखा, ठीक है. तो ये जो भी हाई लेवल लैंग्वेज है, ये प्रोग्राम कंपाइलर किस में कन्वर्ट करेगा, मशीन कोड में करता है, ठीक है. सो मैक्रो प्रोसेसर, मैक्रो प्रोसेसर क्या करता है, इट अलाउ अ प्रोग्राम टू राइट अ शॉर्ट हैंड वर्जन ऑफ अ प्रोग्राम. तो अगर प्रोग्राम में कुछ सिमिलर इंस्ट्रक्शन है तो उसको एक कोड में सेव करना है, मतलब हम जैसे फंक्शंस क्रिएट करते हैं वैसे यहाँ पर क्या क्रिएट होता है, असेंबलर में मैक्रो क्रिएट होता है, और उसको हर टाइम क्या कर सकते हैं, हम कॉल कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो भी है std डेटा 1 डेटा 2, ये बार बार ये प्रोग्राम लग रहा था, तो इसका एक मैक्रो क्रिएट किया, जहां जहां पर उसकी जरूरत है तो वो हमने क्या किया, यहाँ पर कॉल किया. सो मैक्रो के रिलेटेड पूरा जितना भी कुछ है वो सब हमें सेकंड यूनिट अभी जो भी स्टार्ट होगा वो रिलेटेड टू मैक्रो ही है, तो वहां पर हम अगेन डिटेल में स्टडी करने वाले इसकी वर्किंग. देन नेक्स्ट है 6 1 इज द डिबगर. डिबगर ये क्या है, टूल है प्रोग्रामर को टेस्टिंग, प्रोग्राम को टेस्टिंग करने के लिए ये यूज होता है. सो इट हेल्प्स टू डिटेक्ट द एरर. ओके, सो यहाँ पर यूजिंग द डिबगर वी कैन सेटिंग द ब्रेक पॉइंट एंड डिस्प्लेइंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. तो नेक्स्ट वन है द इंटरप्रेटर. सो इंटरप्रेटर भी क्या है, एक कन्वर्ट करने का काम करता है, जो भी सोर्स प्रोग्राम है उसको कन्वर्ट करता है मशीन प्रोग्राम में. लेकिन ये क्या करते हैं, सोर्स कोड जो भी वन इंस्ट्रक्शन और वन लाइन एट ए टाइम ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है. देन ऑपरेटिंग सिस्टम. Operating system is a system software that manage a computer hardware software resources and provide the common services for a computer programs. Then ninth one है कि device driver है. So device driver is a computer program that operate or control a particular type of device that attaches to a computer. So इस टाइम मैंने एग्जांपल दिया था प्रिंटर का. So प्रिंटर हार्डवेयर अटैच किया तो प्रिंटर रन हो गया क्या नहीं, उसके लिए ड्राइवर ही चाहिए. ओके, देन अभी इसकी नीड क्या है. सो सिस्टम सॉफ्टवेयर की नीड किसके लिए, कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत है, इतना याद रखना है. देन अब जो हम जो देख रहे पॉइंट है वो असेंबली लैंग्वेज, क्योंकि अभी हमें स्टडी करना है असेंबलर. सो असेंबलर का इनपुट ही है असेंबली लैंग्वेज. तो असेंबली लैंग्वेज के बारे में अभी देखते हैं. सो व्हाट इज मीन बाय असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज इज अ मिडल लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज. ओके, तो असेंबली लैंग्वेज इज अ मशीन डिपेंडेंट. देन इट डिफर्स फ्रॉम अ कंप्यूटर टू कंप्यूटर. ये चेंज होता है, मतलब कंप्यूटर टू कंप्यूटर मतलब क्या, प्रोसेसर अगर चेंज है तो ये लैंग्वेज के जो भी निमोनिक है वो चेंज होता है. ओके, देन एलिमेंट ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं. सो असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट, बेनिफिट्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज एंड सिंपल असेंबली लैंग्वेज स्कीम. तो फर्स्ट वन इज द, अब अगेन कुछ डेफिनेशन अभी यहाँ पर हमें देखना है. सो लोकेशन काउंटर की जरूरत क्या है, कि इट पॉइंट्स टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. एंड लिटरल का यूज क्या है, इट लिटरल इज नथिंग बट द कांस्टेंट वैल्यू. ओके, व्हाट इज मीन बाय सिंबल. सिंबल मतलब जो भी असेंबलर में हम जो प्रोग्राम्स और असेंबलर प्रोग्राम में जो भी वेरिएबल्स हम यूज करने वाले, जो लेबल्स यूज करने वाले, इसको बोलते हैं सिंबल्स. ओके, then procedure is nothing but the method and functions. Okay, so इसको बोलते हैं mnemonic, MOVR, MOVM, these are the mnemonic. Okay, then symbolic operand DS and DC and data. अगर डिक्लेयर करना है डेटा को तो X DC और यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं. ओके, और जो भी असेंबली लैंग्वेज उसका स्टेटमेंट कैसा है, लेबल, ऑपकोड, ऑपरेंट 1 एंड ऑपरेंट 2. जैसे कि लूप ये क्या है, लेबल है, ऑपकोड MOVR, operand 1 ARG and operand 2.
तो हमेशा याद रखना ऑपरेंट 1 या रजिस्टर ऑपरेंट ही रहेगा, ARG, BRG, CRG, DRG। ओके, और यहाँ पर एक तो सिंबल लिटरल रहेगा या कुछ वेरिएबल रहेगा। So these are the instruction. Okay, stop, add, sub, multiplication, MOVR, move करना, comparison. Okay, then so what is mean by imperative statement? So there are three types of a statement. First one is the imperative statement. Third one, next one is the declarative or declaration statement, and third one is the assembler directive statement. Okay, so what is mean by imperative statement? इम्पेरेटिव मतलब कुछ जो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है उसको बोलते हैं इम्पेरेटिव स्टेटमेंट, MOVR, स्टॉप, रीड, ऐड। ओके, और डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट कौन कौन से, DS एंड DC। सो डिक्लेयर एज अ स्टोरेज, डिक्लेयर एज अ कांस्टेंट। ओके, सो डिक्लेरेशन के जो भी सिंटैक्स वो क्या है, DS एंड कांस्टेंट स्पेसिफाइंग द साइज। सो XDS1, सो ये क्या करता है, यहाँ पर इतनी साइज, यहाँ पर DS में क्या एक्सप्लेन करते हैं हम, साइज एक्सप्लेन करते हैं। एंड डिक्लेयर एज अ कांस्टेंट में क्या डिक्लेयर करते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू क्या है वो डिक्लेयर करते हैं। ओके, और असेंबलर डायरेक्टिव कौन कौन से हैं? सो देर आर अ मेन असेंबलर डायरेक्टिव टू स्टार्ट एंड एंड। सो स्टार्ट के आगे कुछ एड्रेस कांस्टेंट रहेगा जो कि जहां से मेमोरी लोकेशन हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, एंड देन नेक्स्ट वन इज द एंड। ओके, तो ये हमने देखा। देन नेक्स्ट पॉइंट है एडवांस असेंबलर डायरेक्टिव। सो देर आर थ्री एडवांस असेंबलर डायरेक्टिव, ओरिजिन, सिंबल एंड LTORG। सो ओरिजिन क्या है? ओरिजिन मतलब क्या, जो ये किसके लिए यूजफुल रहेगा, अगर हमें कंसेक्यूटिवली मेमोरी लोकेशन यूज नहीं करना। कंसेक्यूटिवली मतलब क्या, 101, 102, 103, 104, ये क्या है, ये कंसेक्यूटिवली। लेकिन यूजिंग द ओरिजिन हम कंसेक्यूटिवली मेमोरी स्टोर नहीं कर सकते। ओके, उस लोकेशन पर डेटा स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी वर्ड है वो क्या है, ओरिजिन। ये क्या है, एडवांस असेंबलर डायरेक्टिव, जिसके आगे एड्रेस स्पेसिफिकेशन होगा। सो ओरिजिन वर्ड के बाद जो भी एड्रेस स्पेसिफिकेशन होगा वो इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेंट होगा, कांस्टेंट होगा और एक्सप्रेशन होगा। तो हम वो वैल्यू लेकर क्या कर सकते हैं, उस लोकेशन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ओरिजिन लूप +5 है, तो यहाँ पर क्या चेंज होगा, लूप का एड्रेस है 101, सो 101 + 5 106। सो नेक्स्ट जो एड्रेस स्टार्ट होगा, इट स्टार्ट फ्रॉम 106। तो ये एग्जांपल भी हमने डिटेल में स्टडी किया था। ठीक है, देन EQ। सो EQ ये क्या, इसका यूज क्या है कि सिंबल को अगेन एड्रेस स्पेसिफाई करने के लिए किसका यूज होता है, EQ। तो यहाँ पर जो सिंबल, यहाँ पर न्यू सिंबल होता है, ये ओल्ड कुछ तो एड्रेस स्पेसिफिकेशन यहाँ पर मिलता है। अगेन कुछ कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, कुछ ऑपरेंट स्पेसिफिकेशन यहाँ पर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल बैक ये न्यू सिंबल है, तो उसको एड्रेस कहाँ से मिल रहा है, लुक का जो एड्रेस है वो कहाँ पर मिलेगा इसको, मतलब इसका एड्रेस किसको असाइन होगा, बैक को असाइन होगा। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय थर्ड असेंबलर, एडवांस असेंबलर डायरेक्टिव इज LTORG। LTORG का यूज है इट ऑर्गेनाइज द लिटरल। ओके, लिटरल ऑर्गेनाइज के लिए ये यूज होता है। जो भी प्रोग्राम में, जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में जो लिटरल है उसको मेमोरी असाइन करने का काम किसका होता है, LTORG स्टेटमेंट का। ओके, और जो LTORG स्टेटमेंट नहीं है तो एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट इस लिटरल को क्या करते हैं, मेमोरी को असाइन करते हैं। ओके, then at every LTORG statement memory is allocated to the literal of the current pool of literal। so हर एक LTORG स्टेटमेंट के टाइम क्या होते हैं, मेमोरी को अलोकेट करते हैं हम लोग। ओके, और पूल कंटेंट्स और लिटरल, एक पूल के अंदर सब लिटरल्स होते हैं। सो ये हमने एग्जांपल के थ्रू भी देखा था, राइट। सो निमोनिक ऑपकोड टेबल। सो निमोनिक ऑपकोड टेबल में क्या क्या आता है, निमोनिक ऑपकोड, मशीन ऑपकोड, क्लास एंड साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन। देन LTORG हमने देखा है, राइट। सो नेक्स्ट है अभी सैंपल कोड। सो ये कोड मैंने ऑलरेडी इस टाइप का है, ये स्लाइड पर अलग कोड है, लेकिन इस टाइप का मैंने एक सैंपल कोड सॉल्व करके लिया था। ओके, सो स्टार्ट ये कौन से टाइप का असेंबली डायरेक्टिव आता है, सेकंड ये कौन सा है कोड है,
ये इम्पेरेटिव स्टेटमेंट में आता है। देन थर्ड भी अगेन क्या है, इम्पेरेटिव स्टेटमेंट में आएगा। एड ये भी क्या है, इम्पेरेटिव स्टेटमेंट है। ओके ओके, डीएलसी एज अ डीसी और डीएलसी ये किस में आएंगे, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। और एंड क्या है, असेंबलर डायरेक्टिव। ओके देन लोकेशन काउंट की डेफिनेशन मैंने बताई, सिंबल, लिटरल एंड प्रोसीजर ये मैंने बताया आपको, ठीक है। देन ये है मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। सो मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कैसे लगते हैं हम, ऑपकोड, वो रजिस्टर ऑपरेंड एंड मेमोरी ऑपरेंड। ओके सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ असेंबलर, लोड एंड गो असेंबलर, 1 पास असेंबलर एंड 2 पास असेंबलर। सो हमारा कंसंट्रेशन किसके ऊपर चाहिए, 2 पास असेंबलर के ऊपर, ठीक है। तो लोड एंड गो असेंबलर मतलब क्या, जो भी प्रोग्राम है जो कन्वर्ट करके देगा अब कंपाइलर, सो कंपाइलर के बाद वो प्रोग्राम क्या होगा, डायरेक्टली मेमोरी में लोड होगा, और वो उसी टाइम लोडर ही क्या करेगा, उस कंपाइलर को क्या करेगा, मशीन कोड में कन्वर्ट करके क्या करेगा, लोड करेगा। मतलब ये जो भी प्रोसेस है, लोडिंग अलग एंड असेंबलर का जो भी मशीन कोड कन्वर्ट करना, ये दोनों स्टेप अलग नहीं होगी, एक ही साथ होगी। ओके एंड नेक्स्ट है 1 पास असेंबलर। सो 1 पास असेंबलर में ही क्या होगा, डायरेक्टली मशीन सॉरी जो असेंबली कोड है वो डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट होगा, 1 ही पास में। पास मतलब क्या, स्टेप, 1 स्टेप में ये क्या होगा, कन्वर्ट होगा। और यहाँ पर क्या है, 2 पास असेंबलर। सो 2 पास असेंबलर मतलब 2 स्टेजेस। सो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, तो जो भी सिम्बॉल्स, निमोनिक, ऑपकोड ये सब सेपरेट हो गया और उसके टेबल क्रिएट होगा। एंड अगेन एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट होगा। एंड पास 2 में क्या होगा, पास 2 का काम सिर्फ इतना रहेगा, मशीन कोड जनरेट करने का। ओके सो ये असेंबलर पास 1 एंड पास 2 का वर्क होगा। सो ये सेपरेट करेगा सबको, लेबल को, सिंबल को, निमोनिक को, ऑपरेंड को। ओके एंड इसकी जो भी स्टोरेज, हम लोकेशन काउंट भी यहाँ पर क्या करते हैं, असाइन करके देते। ओके और पास 2 में क्या होगा, सिर्फ मशीन कोड जनरेट होगा। ओके सो पास 1 क्या यूज करेगा, कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर यूज करेगा, मशीन ऑफ कोड, लिटरल टेबल, सिंबल टेबल एंड पूल टेबल। सो हर टाइम ये फेमस क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर द डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर पास 1। सो आपका आंसर चाहिए निमोनिक ऑपकोड टेबल, सिंबल टेबल, पूल टेबल एंड लिटरल टेबल। ओके ये एग्जांपल लिए थे, अभी यहाँ पर सब क्या है, एग्जांपल है। तो एग्जांपल के लिए मैंने एक फाइल क्रिएट करके रखी है, अभी आपका कंफ्यूजन ना हो क्योंकि ये स्लाइड पर अगेन अलग एग्जांपल है। तो सॉल्व करने के लिए आप ये भी एग्जांपल सॉल्व करके देख सकते हो। और मैंने एक फाइल बनाई थी जहाँ पर अगर आपको याद होगी तो वो भी इस पीपीटी पर है वो फाइल। सबको ये याद करना है, ये मैंने कैसे सॉल्व किया था ये भी देखना, ठीक है। और लास्ट जो भी एग्जांपल मैंने सबको ऐसे बताया था कि अपलोड करो आप। सो हार्डली 2 to 3 स्टूडेंट ने उसको क्या किया है, अपलोड किया है। तो आपको ये फाइल में अपलोड मतलब नहीं लिखना है, आपको खुद का एक पेपर लेकर ये एग्जाम्पल क्या करना था, सॉल्व करना था। तो इस एग्जाम्पल में किसी कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल बाकी है, तो ये मैंने आपके लिए असाइनमेंट रखी है, ठीक है। तो ये थर्ड एग्जाम्पल, ऐसे टोटल 2 एग्जाम्पल लिए थे, इन डिटेल में लिए थे वो भी, ठीक है। एक सिंपल लिया था, पहले ये एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करो, उसके बाद क्या करना है हमें, सेकंड एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करना है। सो ये स्टेप्स थी, व्हाट आर द स्टेप्स टू सॉल्व द असेंबलर कोड, read a source program, add location count, then prepare the symbol table, literal table and pool table and prepare the intermediate code. Okay, using MOT table, symbol table and literal table, and pass to में क्या होगा, generate the machine code from intermediate code. So ये पूरा क्या था, ये assembler था। तो किसी को अगर प्रॉब्लम होगा तो बोलो, तो ये एग्जाम्पल हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके प्रॉब्लम होगा तो, अदरवाइज अगर आप सॉल्व कर पा रहे तो अच्छी बात है। देन यहाँ पर अगर आप देखते हैं सिलेबस, तो अभी मैं एमसीक्यू एंड जो भी यूनिवर्सिटी के कुछ क्वेश्चंस पेपर थे उसके एग्जांपल दिखा देती हूँ, और आप गेस करो कि आपको इसके सब चीजें आ रही या नहीं, ठीक है। मैं एक बार फिर से सिलेबस दिखा देती हूँ।
ओके, सो ये था फर्स्ट यूनिट का सिलेबस और एक केस स्टडी थी, स्टडी ऑफ डिबगिंग टूल लाइक जीडीबी। सो ये मैंने LP1 प्रैक्टिकल के टाइम ये भी आपको समझाया था। सो यहाँ तक ये यूनिट कंप्लीट है। ओके, तो किसी को भी कुछ भी डाउट है बाद में भी आप देख सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब MCQ देखते हैं। ओके, सो अभी आंसर दे दो, मैं लगे तो इसको हाइड करती हूँ। Is a to pass assembler the object code generation is done during the, कौन से पास में ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होता है? ऑब्जेक्ट कोड मतलब मशीन कोड, ये डेफिनेशन याद ही रखो। हाँ, टू पास, फर्स्ट पास, जीरोथ पास नॉट डन बाय असेंबलर। तो टू पास असेंबलर में कहाँ पर ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होता है? कौन से सेकंड पास। पास में, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, in a two pass assembler the pseudo code EQ is to be evaluated during, कहाँ पर जनरेट होता है टू पास असेंबलर में pseudo code EQ? कहाँ पर? फर्स्ट पास। राइट। द इंस्ट्रक्शन लाइक अ मूव और ऐड आर कॉल्ड एज opcode. राइट। देन द पर्पस ऑफ ओरिजिन डायरेक्टिव, लगा तो इसको थोड़ा साइज बढ़ा देती हूँ, हर एक को रीड करो। टू इंडिकेट द स्टार्टिंग पोजीशन इन मेमोरी where the program block is to be stored, to indicate the starting of the computation code, no, to indicate the purpose of code, no, to list the location of all registered use, no। तो इसका फर्स्ट ए पॉइंट होगा। ठीक है, मैं लगे तो यहाँ पर हमारा आंसर लिखते हो कि यहाँ पर आपने क्या बताया था? ए, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए। ओके, translator for a low level programming language were termed as a Assembler. assembler। ओके, कंपाइलर के लिए हाई लेवल चाहिए था। हाँ, अगर यहाँ पर कंपाइलर है तो ट्रांसलेटर फॉर हाई लेवल लैंग्वेज, देन आपका आंसर आता कंपाइलर। ओके, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम आर रिटन यूजिंग mnemonics। mnemonics, right। then which of the following system program for goes the production of object code to generate the absolute machine code and load into physical main storage location from which it will executed immediately upon the completion of assembly? So इसका आंसर है load and go assembly। हाँ, ये डायरेक्टली तुरंत आप देख सकते हैं ना कि ऑब्जेक्ट कोड जनरेट द एब्सोल्यूट मशीन कोड, मतलब डायरेक्टली मशीन कोड जो भी वो मेमोरी में स्टोर होगा एंड देन वहीं पर क्या होगा, मतलब असेंबलर एंड लोडर एक ही टाइम एक ही काम करता है। ठीक है, वरना मतलब असेंबलर को असेंबली लैंग्वेज कन्वर्ट होगा मशीन कोड में एंड मशीन कोड तुरंत लोड होगा मेमोरी में। ओके, सो ये ना एक्चुअली ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन था। ठीक है, आपने आंसर दिया। सो एन इंपेरेटिव स्टेटमेंट, तो क्या आंसर आएगा? रिजर्व मेमोरी ऑफ with them indicate action to be performed during the execution of assembler program, right? B. Then in a two pass assembler the task of pass 2 is to, pass 2 का टास्क क्या है? synthesize the target program। synthesize, हाँ राइट। ये टारगेट प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट कोड, मशीन कोड ये सेम है। हाँ, then the last statement of source program should be End. End। in the following assembly program code number 9 what are the error should be reporting? तो यहाँ पर जैसे सी में एरर आते हैं, देखो सिंटैक्स एरर, सिंबल नॉट डिफाइन, अगर आपने कुछ गलत दिया, सपोज आपका डिफाइन नहीं है कुछ भी ना, सिंबल है, कीवर्ड है, तो वहां पर अनडिफाइंड का एरर आता है ना, वैसे ही असेंबली लैंग्वेज में भी ऐसे एरर आते हैं। हाँ, तो यहाँ पर ये दिया है स्टार्ट 100 MOVR, ये सब दिया है। तो यहाँ पर नंबर 9 में कौन सा एरर है?
सो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये निमोनिक जो भी वो क्या है, इनवैलिड अपकोड है। ये क्या है, Invalid. हाँ, सो ये इनवैलिड अपकोड है क्योंकि यहाँ पर MOVR का ये ऐसे इंस्ट्रक्शन है ही नहीं। ओके, सो ये इनवैलिड अपकोड में आता है। देन अगेन सेम 14 लाइन में क्या एरर है, ADS5। तो यहाँ पर क्या है, डुप्लीकेट, यहाँ पर अगर आप देखते हैं डुप्लीकेट डेफिनेशन है। देखो ADS1 भी है और ADC5 भी है। सो यूजर डिफाइन सिंबल ऑपरेंड ये नहीं, डुप्लीकेट डेफिनेशन ऑफ सिंबल ये इसका आंसर है। ओके, देन अभी लास्ट 2 ही क्वेश्चंस बाकी हैं। इन फॉलोइंग असेंबली लैंग्वेज नंबर 10 व्हाट एरर शुड बी रिपोर्ट इन पास टू। सो कौन सा एरर आएगा नंबर 10 लाइन में, एड BRG B। सो अनडिफाइंड सिंबल, क्योंकि बी को डिफाइन ही नहीं किया है। ओके, सो अनडिफाइंड सिंबल। Then assembly program contains statement X EQ Y plus 25. So EQ statement is proceed if, कब प्रोसीड होगा, क्या प्रोसीड होगा। सो क्या होता है ये प्रोसीड होने के बाद, एड्रेस ऑफ X इज अ Y Of plus X. 20 और एड्रेस ऑफ Y इज अ X plus 25, एरर और नन ऑफ दिस। क्या आंसर आएगा, B A. option है। Option A. Apps. ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, ठीक है, इसके ऑप्शन में बाद में उसको करती हूँ चेंज। अभी आपको क्या देखना है यहाँ पर, डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस कैसे। ये क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी मैंने ब्लॉग पर शेयर की है। ठीक है, सो एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आपको क्या करना है, इस टाइप में जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। सो 5 मार्क्स है तो एटलीस्ट 5 to 6 पॉइंट यहाँ पर क्या होने चाहिए, एक्सप्लेन होने चाहिए। ओके, एक्सप्लेन हाउ, अभी यहाँ पर आपको सिंगल क्लास असेंबलर नहीं है। ओके, एक्सप्लेन हाउ पास वन असेंबलर इज वर्क। सो ये भी अगर यहाँ पर देते तो भी आपको आंसर आना चाहिए। सो क्या होगा यहाँ पर, एक्सप्लेन हाउ पास वन असेंबलर वर्क इन द फॉलोइंग एग्जांपल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लोकेशन काउंट लिखना है इसका। दिन सब टेबल क्या करने चाहिए, जनरेट करने हैं, इंटरमीडिएट कोड लिखना है। ये पूरा आना चाहिए। कहाँ तक, स्टेप 1। यहाँ पर देखो मैंने जो राइट की थी, यहाँ पर स्टेप्स थी ना, तो ये पास 1 की जितने स्टेप्स है इसका होल आउटपुट, मतलब वहां पर पास 1 का क्या होगा, वो सॉल्यूशन होगा। पास 1 असेंबलर वर्क कैसे होगा, गिव द वेरियस डेटा स्ट्रक्चर इन ए डिजाइन ऑफ पास 1 ऑफ 2 पास। ओके, डायरेक्ट लिंकिंग दो। ओके, ये 2 पास असेंबलर का बोलो तो कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है 2 पास असेंबलर को, पास 1 MOT, हाँ, literal table, symbol table, pool table. right. What are the assembler directive? Explain how assembler directive LTRG, origin and EQ are proceed in a first pass. कौन कौन से assembler directive वो बताना है and explain करना है how assembler directive LTRG, origin and EQ are proceed in first. तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, पहले तो लिस्ट दोगे आप, स्टार्ट एंड एंड ये तीनों, और उसके बाद क्या करना है, सिंपल एग्जांपल बताना है आपको। जैसे कि मैंने बताया था, देखो EQ का जो एग्जांपल लेकर एक सिंपल कोड था, तो उस कोड में ये तीनों आके क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करना है, तो इजी जाता है। ओके, देन फॉलोइंग पीस ऑफ असेंबली कोड शो द कंटेंट ऑफ सिंबल टेबल, लिटरल टेबल एंड पूल टेबल, अज्यूम द साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन इक्वल टू 1, और ये क्या करना है, प्रोग्राम को सॉल्व करना है। ओके, देन फॉर द फॉलोइंग पीस ऑफ लैंग्वेज कोड शो द कंटेंट ऑफ अगेन सिंबल टेबल, मशीन कोड, पूल टेबल। ओके, सो ये जनरली ज्यादातर ऑफलाइन में ये क्वेश्चन आता ही था। ओके, अभी ये सेकंड यूनिट के थर्ड यूनिट के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे, देन एक आधा यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर बताती हूँ।
ये कब का है? 2015 पैटर्न का ये क्वेश्चन। अभी तो आपका न्यू सिलेबस है, लेकिन यूनिटी के जो कंटेंट है वो सेम है, ठीक है। ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। सो डिफाइन द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपोनेंट विद सुटेबल डायग्राम। तो कंपाइलर का आप क्या दिखा सकते? कंपाइलर की डायग्राम, लोडर की डायग्राम, एक टेक्स्ट एडिटर की डायग्राम में से आप इस केस में क्या कर सकते? दिखा सकते हो। ओके, then consider the following assembly code and show the output of pass 1 and pass 2 of two pass assembler with the entries. MOT मतलब क्या? निमोनिक ऑपकोड टेबल, स्यूडो ऑपकोड टेबल है। ये थोड़ा अलग है। तो पीओटी का मीनिंग क्या है? स्यूडो ऑपकोड टेबल। मैंने एक ही टेबल में सब लिखा है, ठीक है। निमोनिक ऑपकोड टेबल जो हमारा है ना, उसमें ही स्यूडो भी है और निमोनिक्स भी है। तो ये दोनों टेबल एक ही है, ठीक है। देन सिंबल टेबल, लिटरल टेबल एंड पूल टेबल चाहिए था, ठीक है। देन ओके, सो इस प्रोग्राम के लिए ये करना है। देन ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द फ्लो चार्ट ऑफ अ पास टू ऑफ टू पास असेंबली। अभी आप जो स्टेप्स फॉलो करते हैं उसका फ्लो चार्ट लिखना है। अभी यहाँ पर इस टाइम फ्लो चार्ट के बारे में कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको फ्लो चार्ट देखना है तो मेरी जो पीपीटी है उसके एट द एंड यहाँ पर फ्लो चार्ट है। ओके, उसको एक बार सिर्फ देखना है, स्टेप समझ के लेनी है। एक बार अगर स्टेप समझ में आए तो फ्लो चार्ट समझना इजी है। तो वो फ्लो चार्ट है। देन what are the databases used by pass 1 and pass 2 assembler? Explain them their format. So कौन कौन से डेटाबेस है? अभी यहाँ पर डेटाबेस मतलब हम डेटा स्टोर कर रहे हैं। सो अगेन यहाँ पर भी वो ही आएंगे। कौन कौन से टेबल्स आएंगे? सिंबल टेबल, लिटरल टेबल, वो ठीक है, वो आपको लिखना है, ठीक है। पहले 1-2 मिनट में मैं अटेंडेंस शेयर करती हूँ, उसके बाद अगेन कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन पेपर का। इसके पहले किसी कुछ प्रॉब्लम है? ये क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है ब्लॉग पर। कुछ और कुछ प्रॉब्लम होगा, अगर आपको कुछ क्वेश्चन होगा तो पहले उसको आंसर करती हूँ मैं। कुछ डाउट है? ठीक है, अटेंडेंस दे दो तब तक। So explain data structure required for ये सेकंड क्वेश्चन पेपर है फॉर टू पास assembler in detail. Okay, then consider then क्या है? What are the assembler direct to explain processing? LTO origin का explain करना है। Then consider the following assembly code. Show the output of pass 1 of 2 pass. सिर्फ यहाँ पर pass 1 का ही आउटपुट बताना है, ठीक है। यहाँ पर ये साइड में क्या है? अगेन एंड रिजल्ट टर्म, these are the symbol or label. Then what is system software and explain for system software in brief. तो यहाँ इस केस में आप क्या करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के डेफिनेशन लिखते हैं, क्या करते हैं, और कौन से भी फोर को क्या करते हैं? एक्सप्लेन। सो असेंबलर को आप डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते हो, देन और क्या, कंपाइलर को आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, बस यहाँ पर इतने, बाकी अलग यूनिट के क्वेश्चन है। सो यहाँ पर मेरे साइड से एंड फर्स्ट यूनिट। सो कुछ क्वेश्चन है तो बोलो, और ये एग्जाम्पल क्या करना है आपको? सॉल्व करना है। ओके, सो कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे तब तक हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो आप बोलो असेंबलर डायरेक्ट स्टेटमेंट स्टार्ट का कोड क्या है? 01। ओके,
देन क्या कोड है अभी, कांस्टेंट 100। ओके, कुछ क्वेश्चन हो गए तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज ये एग्जांपल सॉल्व करते हैं और कल नेक्स्ट सेकंड यूनिट हम स्टार्ट करेंगे एसपीओएस का। आंसर दे दो अभी आप ये एटलीस्ट, इंपेरेटिव स्टेटमेंट कौन कौन से वो, इसका कोड बोलो MOVAR का 04। आप बोलो तो इसके कोड आपके पास नहीं वो एमओजी टेबल होगा ना तो बोलो तो, ताकि जल्दी हो जाएगा। आरजी का पता है मुझे, रजिस्टर्ड 1, देन ये क्या है लिटरल का ये इंडेक्स 0 ही होगी, 0। ये बोलो इसका कोड, ऐड का 04 है या 02? 01 01 है, ओके। रजिस्टर RG 03, L1 देन यहाँ पर क्या आएगा, DL 1 शायद 01 कांस्टेंट, ओके। देन यहाँ पर क्या आएगा, लास्ट 1 मिनट बाकी है, इम्पेरेटिव स्टेटमेंट 04, देन RG01 right RG01 and then S5 S5 या 0 है, 5 है क्या, राइट, S, 5। again add imperative statement 01